हेलो, स्वागत है आप सभी का केस स्टडी नंबर 6 के इस सोल्यूशन वीडियो में। 5 केस स्टडीज हमने अभी तक सॉल्व किए। आई होप वी आर हैविंग अ गुड टाइम प्रैक्टिसिंग दीज केस स्टडीज, है ना। एंड बाकी काम अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो। वी आर क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स। करवा दो यार फटाफट, है ना। एंड लेट्स जंप टू केस स्टडी नंबर 6। प्रथा के मुताबिक सबसे पहले सर रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल। Is understanding of Mr. Ramesh for obtaining prior consent for selling one of the undertakings of the company correct, considering the fact that Luminous Limited is not a private company? कंपनी लॉ का क्वेश्चन है डायरेक्टर्स के चैप्टर में से, ठीक है। ओके सर। सर हमारा कंपनी लॉ बाकी है, कोई टेंशन नहीं, रेलेवेंट मैं समझा दूंगा। What is the place of supply with respect to professional service rendered by Mr. George to Mr. Ramesh? GST का क्वेश्चन। What is the place of supply with respect to tickets bought by Mr. Ramesh for amusement park? GST का क्वेश्चन। Which of the following is correct statement with respect to GST liability in case of the fees paid to Mr. Baldev? वापस GST का क्वेश्चन। Whether the action of management of Luminous Limited correct with respect to declaration of interim dividend? लॉ का क्वेश्चन। लॉ प्लस GST की केस स्टडी आई है, ठीक है। सॉरी, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नंबर 1 6 का सब क्वेश्चन नंबर 1। Whether the retiring directors shall be deemed to have been reappointed at the adjourned meeting? What will be your answer in case of an adjourned meeting? The resolutions of reappointment of those directors were lost. ठीक है। Whether such directors can continue in case of directors do not call the AGM? तो मतलब रोटेशन और डायरेक्टर्स का चैप्टर है जो कंपनी लॉ में सेल्फ पेस में, उसका क्वेश्चन है ये डिस्क्रिप्टिवली। Whether the management understanding related to transfer of solar panel to the company's retail showroom correct in view of the GST law? Also determine the place of supply in case of services procured from attorney by Luminous Limited and suggest if the company is required to pay tax under RCM. GST का क्वेश्चन। How should Luminous Limited recognize government grants in the books of accounts for FY 23-24? FR आया वापस। FR GST कंपनी लॉ, इसकी केस स्टडी है, देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन। ओके। Luminous Limited is a company engaged in the manufacture of solar panels. The vision of the company is to provide the most compelling value in solar energy industry. By value, the company means designing and installing the highest quality solar panels on a timely basis with proper safety and standards and lowest cost. The company aims at providing the country with clean, abundant, low cost, distributed and renewable energy. It is one of the largest vertically integrated solar company that offers services across the spectrum of photovoltaics manufacturing. ठीक है, जो भी है अभी प्रोनाउंसमेंट साइंस का अपन को नहीं आता, ठीक है। The company offers and produces high efficiency solar panels with higher performance and enhanced reliability. The company has the following vision: to be world-class leader in businesses that contribute to nations in building infrastructure through sustainable value creation. Luminous Limited has always been a standard for all manufacturing companies for product quality. The company has multiple quality checks during its solar module production. This helps to ensure flawless production of solar panels and hence attain the utmost customer satisfaction. The company believes that resource scarce developing countries identifying and targeting R&D policies in critical areas such as energy is particularly important to maximize benefits derived from limited funds and skilled manpower. Energy R&D policy and analysis. R&D policy analysis and formulation in a developing country should not be carried out in isolation. It must be consistent with the overall technology policy as well as the national energy policy. The management of the company is of the view that ultimately energy R&D policies and priorities must support the goals of the nation's socio-economic development. Therefore, these priorities must be determined on the basis of an analytical framework that recognizes and addresses national development objectives. The company's research and development department is working very hard to come out with solar panels with the lowest possible cost so as to compete with the foreign manufacturers of solar panels. यहाँ तक पूरा का पूरा नॉइस था, पूरा नॉइस था। भाई क्या करेंगे, अपन की 25 मार्क की केस स्टडी है, उसमें ये सब क्या पढ़ेंगे, है ना। तो पूरा नॉइस था, अब काम की चीज आना स्टार्ट हुई है। यहां तक पूरा नॉइस था, तो हो सके तो यहां तक आप जब प्रैक्टिस करो सेकंड थर्ड टाइम तब मत पढ़ना, चलेगा। मैंने एक फ्लो में क्यों पढ़ डाला, क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने सॉल्व किया, मैंने सबसे पहले रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ा है, तो पता है नॉइज है, ठीक है।
During the FY 23-24, the government gave the following grants to Luminous Limited for its business of solar panel. अब question start हो रहा है. 30 lakh for past research of technology related to solar system. There is no condition attached to the grant. 5 lakhs towards purchase of machinery of 15 lakhs. Useful life of the machinery is 5 lakhs and depreciation on the machinery is to be charged on SLM basis. 3 acres of land to set up a plant. The fair value of the land is 20 lakhs. Government grant of 20 lakhs to defray expenses for environmental protection. Expected environmental cost to be incurred is 6 lakh per annum for the next 5 years. ये ग्रांट की यहां तक की स्टोरी थी कि इतनी 4 ग्रांट मिली किसको, कंपनी को. BR Sridharan and Associates are statutory auditors of company for FY 23-24. The said chartered accountant firm has a robust system of skilled and proficient chartered accountants who can handle all financial service areas relating to accounting, auditing and assurance, income tax, GST, company law, foreign exchange matters, etc. During the financial year under consideration, the board of directors of the company passed a board resolution to sell one of its company's undertakings out of multiple undertakings of the company. One of the directors of the company, Mr. Ramesh, is of the view that the board can exercise this power with consent of shareholders by way of an ordinary resolution, and passing only a board resolution will not be sufficient. Other directors on the board, however, did not agree with him. The investment of the company in the said undertaking which has been proposed is to sell 22% of its net worth as per the latest audited balance sheet of FY 22-23. मतलब एक अंडरटेकिंग सेल करनी है, उसमें बोर्ड के कुछ व्यूज है कि क्या करना चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, प्रोसेस क्या होगा, उसके बारे में डिस्कशन है, हमें उसका आंसर देना होगा. फर्दर मिस्टर रमेश स्टेज इन दिल्ली विथ हिज वाइफ. With respect to one of his immovable house properties in USA, he took professional services of a consulting engineer, Mr. George, based in Chennai. Mr. George has high engineering qualifications, specialized background and wide experience and can plan, design and supervise and help in undertaking maintenance of any type of structure according to the needs of the client. ठीक है. On 31st May 2023, Mr. Ramesh took his family to an amusement park located in Gurugram, Haryana. This particular amusement park has various attractions such as rides and games as well as other events for entertainment purposes. For such visit, son of Mr. Ramesh, who stays in Jaipur for his studies, came to Delhi. Mr. Ramesh bought 3 tickets for the amusement park. रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है इन लोगों का, ठीक है. Luminous Limited is based in Delhi primarily. During the FY 23-24, the company receives legal services from an attorney in Dubai unrelated in relation to registration of company's trademark in Dubai. The company paid 10,000 dirham for the same to the attorney in Dubai. The company has 10 directors on the board. 3 of them are retired by rotation at the annual general meeting conducted recently. The place of retiring directors is not so filled up and the meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy. मतलब क्या है, रिटायरिंग डायरेक्टर्स की वैकेंसी फिल नहीं की और हमने ये भी नहीं सोचा कि इसको करेंगे भी नहीं. ठीक है, इसका डिटेल डिस्कशन नीचे क्वेश्चन में है, लेकिन मैं लैंग्वेज बता रहा हूं आपको. Since the AGM could not complete the said business, it was adjourned to the same day next week at the same time and place. At this adjourned meeting also, the place of retiring directors could not be filled up and the meeting has also not expressly resolved not to fill the vacancy. Further, Mr. Baldev is one of the directors of the company. During the financial year under consideration, the company paid him sitting fee amounting to 35,000 for the month of December. During the year, the company declared interim dividend of FY 23-24 out of the profits of the same year. However, the company did not transfer any amount to the reserves for the said year. ठीक है. The company has its retail showrooms in Patiala and Delhi and a factory in Ludhiana. During the FY 23-24, the company manufactured 150,000 units of solar panels at its factory at Ludhiana, Punjab. The management decided to transfer half of its units manufactured to one of its retail showroom in Patiala and other half to its retail showroom in Delhi for sales therefrom. The factory and the aforesaid retail showrooms are registered under GST in the states where they are located. Further, the company has obtained separate registrations under GST for Ludhiana and Patiala showroom. The management of the company understands that such transfers shall not be considered as supply under GST as such transfers are without any consideration. क्वेश्चन पढ़ा हमने, थोड़ा फटाफट हो गया बिकॉज सी ये केस स्टडी ना मुझे थोड़ी पसंद नहीं आई बिकॉज ना करण जौहर की मूवी जैसी केस स्टडी है. ऊपर कंपनी चल रही है, बीच में अम्यूजमेंट पार्क आ गया, फिर कोई और आ गया, फिर कोई और आ गया, चल क्या रहा है पता नहीं चला, थोड़ी स्कैटर्ड सी है. ठीक है,
और इसके क्वेश्चंस भी स्कैटर्ड आए, ठीक है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई लिंकिंग नहीं है। मैं क्रिटिक, फिल्म क्रिटिक जैसा साउंड कर रहा हूं, आई नो, बट जो है सो है, ठीक है। पॉज करो, एक बार पढ़ो केस स्टडी, वी विल मूव टू द आंसर्स। चलिए आंसर्स डिस्कस करते हैं, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 1, is understanding of Mr. Ramesh for obtaining prior consent for selling one of its undertakings by the company correct, considering the fact that Luminous Limited is not a private company? अच्छा, आप लोग कंपनी लॉ में पढ़ोगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसके पावर के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। उसमें से सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप शेयर होल्डर्स की परमिशन के बिना सर्टन पोर्शन ऑफ अंडरटेकिंग इन विच योर कंपनी हैज इन्वेस्टेड आप बेच नहीं सकते वापस से, बिना शेयर होल्डर्स की परमिशन के। यू कैन नॉट सेल अ सर्टन पोर्शन ऑफ द अंडरटेकिंग इन विच योर कंपनी हैज इन्वेस्टेड। क्या होता है, क्लैरिटी से समझते हैं, ये मैंने ओवरव्यू दिया, आप क्लैरिटी से समझते हैं कितना रेलेवेंट। यहां पे सेक्शन 180 क्या बोलता है, मैटर्स फॉर विच स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड, स्पेशल नॉट ऑर्डिनरी, स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड ऑफ मेंबर्स। उसमें सबसे पहला पॉइंट आप सेक्शन 180 पढ़ोगे सेल्फ पेस के लॉ में, ठीक है। टू सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द होल और सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी और वेयर द कंपनी ओन्स मोर देन वन अंडरटेकिंग of the whole or substantially whole of any such undertakings, in other words out of multiple undertakings of the company, even if one is sold, leased or disposed either wholly or substantially, the consent of special resolution will be required। लेकिन इसके explanation में बोला है कि undertaking का मतलब क्या, where investment is more than 20% of net worth of investor। अब अगर इंस्टीट्यूट को आपकी जान लेनी हो तो कहां ले सकता है, ध्यान देना यहां पे। सिर्फ एक वर्ड चेंज कर देगा ना, आप मर जाओगे। यहां पे देखो, चलो 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 चलो, यहां पे द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इन द सेड अंडरटेकिंग हैज बीन प्रपोज्ड टू सेल 22% ऑफ इट्स नेटवर्थ। यहां पे नॉर्मल दिया है। अब अगर इंस्टीट्यूट ने ऐसा दिया होता ना, मैं हिंदी में बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट ने ऐसा दिया होता ना कि उस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट उसकी बैलेंस शीट के हिसाब से 20% से ज्यादा है, उसकी बैलेंस शीट, हमको देखनी किसकी बैलेंस शीट है, अपनी बैलेंस शीट। अपनी बैलेंस शीट में अपनी बैलेंस शीट का 20% से ज्यादा अगर कहीं और इन्वेस्ट कर दिया है, अपनी बैलेंस शीट का 20% से ज्यादा कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, इंस्टीट्यूट इसको घुमा कैसे सकता है कि उसकी बैलेंस शीट का 20%, तो आंसर पूरा चेंज हो जाता। तो ढंग से पढ़ना है। इट्स नेटवर्थ में मैंने इट्स को राउंड किया था, क्यों, इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आई। तो यार इसमें अब लॉ क्या बोलता है, इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, ठीक है। अभी एमसीक्यू के ऑप्शंस देखते हैं, तो यार ये ना आगे पीछे हो जाता है। नो, ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, नो नो, बोर्ड कैन एक्सरसाइज दिस पावर विद द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड नॉट सिंपली पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ठीक है। आंसर इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है, बी। बात समझ में आई, प्रोविजन समझ में आया। मेरी बैलेंस शीट का 20% से ज्यादा मैंने कहीं और इन्वेस्ट कर रखा है, उसको मुझे सेल ऑफ करना है, शेयर होल्डर का परमिशन लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। ओके सर, कूल। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल सर्विस रेंडर्ड बाय मिस्टर जॉर्ज टू मिस्टर रमेश। कौन जॉर्ज, कौन रमेश यहां पे, ओके। मिस्टर रमेश स्टेज इन दिल्ली, location of recipient. With respect to immovable property in USA, location of property. He took professional service of consulting engineer George based in Chennai, location of supplier. अच्छा, immovable property का place of supply होता है where the property is located or intended to be located, provided that अगर वो property इंडिया से बाहर है तो location of recipient, location of recipient। तो इसमें आंसर क्या आएगा, place of supply will be Delhi, place of supply will be Delhi, दिल्ली। और मैंने यहाँ पे रीजन आपको शॉर्ट में दिया है, आप इंस्टीट्यूट का भी पढ़ सकते हो और मैंने जो रीजन दिया वो भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे दिए देखो, सब दे रखा है, ठीक है। शॉर्ट में लिखता हूं ताकि आपको फटाफट रेफर करने में आसानी हो। ओके, एमसीक्यू नंबर 3। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू टिकट्स बॉट बाय मिस्टर रमेश फॉर द अम्यूजमेंट पार्क। अच्छा, सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ admission to amusement park is
द प्लेस वेयर द अम्यूजमेंट पार्क इज लोकेटेड। तो जहां पे वो पार्क लोकेटेड है वो स्टेट या वो प्लेस हो जाएगी उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। बहुत इजी है, गुरुग्राम आएगा इसमें, गुरुग्राम। फॉलोइंग सर्विसेज, amusement park will be place where event is actually held और park is located। इसको भी मैंने नीचे आपको इजी वे में करके दे दिया है, एक लाइन लिख के, ठीक है, ये रहा, तो आप यहां से भी पढ़ सकते हो। ओके, एमसीक्यू नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी लायबिलिटी इन केस ऑफ फीस पेड टू मिस्टर बलदेव। अच्छा, चार्ज ऑफ जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस में आरसीएम की लिस्ट पढ़ोगे, उसमें सिटिंग फीस पे, डायरेक्टर सिटिंग फीस पे रिवर्स चार्ज लगता है, कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ता है। तो क्या आएगा, जीएसटी इज पेएबल बाय ल्यूमिनस लिमिटेड अंडर रिवर्स चार्ज। इसको भी मैंने शॉर्ट में दे दिया है, ये रहा, जीएसटी इज लेविएबल अंडर रिवर्स चार्ज। क्या पे ये पूरा रीजन दिया है, आप नीचे भी पढ़ सकते हो। आपको कहां जाना है, जीएसटी में, चार्ज ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर में आरसीएम की लिस्ट देखनी है। बात समझ में आई? और लास्ट एमसीक्यू पे आ जाते हैं। वेदर द एक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ल्यूमिनस लिमिटेड करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। क्या किया था ल्यूमिनस लिमिटेड ने? द कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड फॉर FY 23-24 आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द सेम ईयर। हाउएवर द कंपनी डिड नॉट ट्रांसफर एनी प्रॉफिट टू रिजर्व्स। कोई कंपल्शन नहीं है, कंपनी लॉ में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको रिजर्व्स में ट्रांसफर करने के बाद ही आप डिविडेंड दे सकते हो। तो एक्शन करेक्ट है मैनेजमेंट का, बिल्कुल करेक्ट है भाई, कोई कंपल्शन नहीं है। इज नॉट करेक्ट नहीं आएगा, इज करेक्ट फॉर ट्रांसफरिंग सच ट्रांसफर इज ऑप्शनल, ये आएगा करेक्ट में, ना ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। क्या आंसर लिखा है इंस्टीट्यूट ने, इज ऑप्शनल। बात समझ में आई? मैंने नीचे लिख दिया है नो कंपल्शन, नो कंपल्शन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी अमाउंट टू रिजर्व्स, मैंने ऐसा शॉर्ट में दे दिया, ठीक है। एमसीक्यूज इजी थे, काफी इजी थी, केस स्टडी इजी है, ठीक है, बिकॉज करण जौहर की मूवी जैसी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहां पे थोड़ा समझने जैसा आया, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, अच्छा हुआ था क्या, वो बात समझते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है, वेदर द रिटायर्ड डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू हैव रीअपॉइंटेड इन द एडजर्न मीटिंग, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, विल योर आंसर इन केस ऑफ एन एडजर्न मीटिंग, व्हाट विल बी द आंसर इन केस ऑफ एन एडजर्न मीटिंग, द रेजोल्यूशन ऑफ रीअपॉइंटमेंट ऑफ दिस डायरेक्टर्स वेर लॉस्ट, ठीक है। Whether directors can continue in case the directors do not call for an annual general meeting, ठीक है। स्टोरी सुनना ध्यान से, ठीक है। स्टोरी बता रहा हूं, फिर पढ़ लेंगे अपन। सपोज आप 10, 12, 15 स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आप अपन सबकी कंपनी है और मैं आपकी कंपनी में डायरेक्टर्स हूं, मेरे साथ बहुत सारे अदर डायरेक्टर्स है, ठीक है। अब रोटेशन का प्रोविजन क्या बोलता है, ध्यान देना, रोटेशन का प्रोविजन क्या बोलता है कि जितने भी रोटेशनल डायरेक्टर्स है, उसमें से 2/3 विल बी लायबल फॉर रोटेशन। 2/3 विल बी व्हाट, लायबल फॉर रोटेशन एवरी ईयर, लायबल फॉर रोटेशन, नॉट रोटेटेड, लायबल फॉर रोटेशन। और जितने लायबल फॉर रोटेशन है उसमें से 1/3 विल रिटायर, मतलब 100% है तो इंटू 2/3 इंटू 1/3 रिटायर हो जाएंगे, इंटू 2/3 इंटू 1/3 रिटायर हो जाएंगे। ये रिटायरमेंट बाय रोटेशन का प्रोविजन है। ये कंपलसरी प्रोविजन है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल एजीएम बुलाई, ठीक है, मैं रिटायर हो रहा हूं, लेकिन मेरे बदले कौन आएगा वो आप लोगों को नहीं पता, और ऐसा भी नहीं है कि आपको मेरे बदले किसी को लाना नहीं है वापस से, मैं जा रहा हूं, बाय बाय, लेकिन मेरे बदले कौन आएगा यू गाइज डोंट नो, यू गाइज आर द शेयर होल्डर्स, मेरे बदले कौन आएगा यू गाइज डोंट नो। एंड आपने ये भी तय कर रखा है कि मेरे बदले किसी ना किसी को तो लाना है, तो आपने क्या किया, मीटिंग एडजर्न कर दी। मीटिंग एडजर्न कर दी कब तक, नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम और सेम प्लेस, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक। वापस मैं आ गया नेक्स्ट वीक, आपने ऐसा बोल दिया कि मालव को तो हटाना है, लेकिन मालव के बदले कौन आएगा वी डोंट नो, और मालव के बदले किसी को लाना है वो भी तय है। तो अब क्या मीटिंग वापस एडजर्न होगी, नहीं, ये कोई लूप नहीं चल रहा है, तो अब मेरा डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो जाए वापस से। पूरी स्टोरी, मैं रिटायर हो रहा, मेरे बदले किसी को आना है, वो कौन है नहीं पता, मुझे जाना है तय है, मीटिंग एडजर्न हो गई, वापस मैं आ गया, ठीक है, मुझे जाना है तय है, मेरे बदले कौन आएगा मुझे नहीं पता, ना आपको पता है, तो अब, और आपको किसी ना किसी को तो लाना है मेरे बदले, तो अब वापस मीटिंग एडजर्न होगी नहीं,
अब मेरी डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो जाएगी। क्यों ऐसा प्रोविजन, अब ध्यान देना। वेकेंसी नॉट फिल्ड एंड नॉट एक्सप्रेस्ड नॉट टू फिल, ये लैंग्वेज क्या है? वेकेंसी नॉट फिल्ड मतलब मुझे निकालना है और मेरे बदले किसी को लाना है, वो आपको नहीं पता, लेकिन मुझे निकालना है पता है। नॉट एक्सप्रेस्ड नॉट टू फिल द वैकेंसी, अच्छा ऐसा प्रोविजन क्यों है? क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? 3, तो 3 डायरेक्टर से भी कंपनी चल सकती है। 3 डायरेक्टर से भी तो कंपनी चल सकती है ना। आपने बोला कि जितने हैं उतने हटा, हम 3 देख लेंगे, तो चल सकती है। तो यू गाइस हैव नॉट एक्सप्रेस्ड नॉट टू फिल, मतलब इसको हटाना है, किसी को लाना है, दोनों चीज तय है, लेकिन किसको लाना है वो नहीं पता। तो क्या होगा? मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न टिल नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम। ठीक है। अब एडजर्न मीटिंग में भी क्या हुआ? मुझे निकालना है, तय है, किसी को लाना है, तय है, कौन है नहीं पता। तो अब क्या वापस मीटिंग एडजर्न होगी? नहीं, खेल नहीं चल रहा है, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। लेकिन 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 कहानी में ट्विस्ट, जब एडजर्न होने से पहले जो मीटिंग थी ना, उसमें ऐसा बोल दिया एक शेयर होल्डर ने कि मुझे जाना है तय है, किसी को आना है तय है, लेकिन मालव वापस नहीं आएगा। वापस से मालव किसी भी शक्ल सूरत में वापस डायरेक्टर नहीं बनेगा, ऐसा बोल दिया और सबने मान लिया। तो अब क्या मेरी डीम रीअपॉइंटमेंट होगी? बिल्कुल नहीं भाई, शेयर होल्डर्स के इंटेंट के ऊपर लॉ ओवरराइड नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिखा है? अनलेस एट द adjourned मीटिंग और प्रीवियस मीटिंग or at the previous meeting a resolution for reappointment of such director was put and lost, and he has given notice in writing address to the company or BOD expressing his desire not to be re-elected। वापस से प्रीवियस मीटिंग में क्या हुआ? मुझे जाना है, किसी को आना है, लेकिन एक रेजोल्यूशन पास हो गया कि मालव तो वापस नहीं ही आएगा, तो मेरी लॉफुली रीअपॉइंटमेंट होगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा मैंने ही ना बोल दिया, मैं रिटायर हो रहा हूं, अब मैं सुखी हूं, मैंने बोल दिया अब मुझे रीइलेक्ट मत करना, तो क्या वापस मेरी रीअपॉइंटमेंट होगी? डीम रीअपॉइंटमेंट होगी? बिल्कुल नहीं। तो पूरी स्टोरी में वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मीटिंग हुई, मैं रोटेशन हो गया, रिटायर बाय रोटेशन हो गया, किसी को आना है, कौन आएगा नहीं पता। मीटिंग एडजर्न हुई, वापस मेरे को जाना है, किसी को आना है, कौन आना है नहीं पता, तो मेरी डीम रीअपॉइंटमेंट हो जाएगी। लेकिन 2 केसेस में मेरी डीम रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी। या तो उस मीटिंग में एडजर्न या उससे पहले की मीटिंग में किसी ने बोल दिया कि मालव तो नहीं ही चाहिए, तो मेरी डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी। एंड अगर मैंने बोल दिया कि मुझे रीइलेक्ट नहीं होना, तो भी मेरी डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी। लॉजिकली आसान भाषा में हमने ये प्रोविजन को समझा, कंपनी लॉ में आप और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है। अब इन 3 क्वेश्चंस का हम आंसर देंगे लॉजिकली। वेदर द रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रीअपॉइंटेड, यस, बिकॉज एडजर्न मीटिंग हो गई, उसके बाद वापस तो एडजर्न चलता तो नहीं रहेगा ना, लूप तो नहीं है, खेल नहीं चल रहा है। व्हाट विल बी योर आंसर इन केस एट द एडजर्न मीटिंग द रेजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ दिस डायरेक्टर्स वेर लॉस्ट? तो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी, यहां पे डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी। और तीसरा, वेदर सच डायरेक्टर्स कैन कंटिन्यू इन केस डायरेक्टर्स डू नॉट कॉल फॉर द एजीएम। भाई मैं बहुत चंट आदमी हूं, मैंने एजीएम ही नहीं बुलाई। एजीएम बुलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? मेरी। मैंने बुलाई नहीं, मैं कहा ना होगी एजीएम ना होगा रिटायरमेंट। तो लॉ बोला ऐसा कैसे? सेक्शन 96 बोलता है कि अगर एजीएम नहीं होती तो लास्ट डे जब है, लास्ट डे, तब मुझे रिटायर हो जाना है। सेक्शन 96 क्या बोलता है? लास्ट डे, ड्यू डेट ऑफ एजीएम। और सेक्शन 152 क्या बोलता है कि अगर एजीएम डायरेक्टर चंट है, एजीएम बुला ही नहीं, तो जिस दिन एजीएम बुलानी थी लास्ट डे, उस दिन मुझे रिटायर हो जाना है। लॉजिकल है भाई, है ना? तो तीनों के आंसर देख लो। फर्स्ट का डीम रीअपॉइंटमेंट, यस। रेजोल्यूशन लॉस्ट हो गया, यस, नो डीम रीअपॉइंटमेंट। और तीसरा, मीटिंग नॉट कॉल्ड, रिटायर ऑन द लास्ट डे ऑन विच मीटिंग वाज ड्यू एज पर सेक्शन 96। थोड़ा स्टोरी आपको बताया ताकि आपको थोड़ा मजा आए पढ़ने में। ये सेम स्टोरी आप कंपनी लॉ में भी पढ़ोगे। सेक्शन 96 क्या बताता है? ड्यू डेट। और 152 क्या बोलता है कि अगर इसने एजीएम नहीं बुलाया, इसको ड्यू डेट पे लात मार के निकाल देना। ऐसा, मुझे लात मत मार प्लीज है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अच्छा लिखना कैसे है वो सब मैं नहीं बता रहा, बिकॉज आपके पास बुक होगी, लिख लेना। लिखना कैसे है भाई, आप लोग पहले भी तो इलेक्टिव देते थे, जो लोग पहले इलेक्टिव नहीं देते उसको इतना समझ में आ जाए सामने वाले को, उतना लिखना है। ठीक है। नाउ वी डोंट नो, इंस्टीट्यूट तो लंबा लंबा लिख रहा है भाई। यहां पे आप अगर इसका आंसर देखोगे, जो मैंने आपको स्टोरी बताई उसका आंसर देखोगे यहां पे, तो यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक चल रहा है। अब इतना हम एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे फॉर श्योर। तो कितना लिखना है, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आने दो, 1 आध 2 अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर देखने दो। सर
May 24 में हमारे साथ एक्सपेरिमेंट होने वाला है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ जरूर होगा, ठीक है, बट वी विल मेक श्योर कि जो एक्सपेरिमेंट से हमें कम से कम नुकसान हो, है ना, इतना समझ आ जाए उतनी स्टोरी आपको लिख के आनी है। और ये क्वेश्चन आएगा भी 5 मार्क में, बिकॉज 5 इंटू 2 10 एमसीक्यूज हो गए, अगर 3 सब क्वेश्चन पूछे 10 मार्क के एमसीक्यू हो गए, 25 मार्क की केस स्टडी होती है, तो 5 का एक 3 क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो 5 मार्क के लिए आप कितना लिखोगे, तो ये बात आपको थोड़ा जजमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है सर, लगा लेंगे जजमेंट, इसी के लिए बैठे हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सब पार्ट, whether the management's understanding related to transfer of solar panel to the company's retail showroom correct in the view of GST law। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये स्टोरी है, नीचे एरो करके डाली है, वो क्या है स्टोरी, द कंपनी हैज रिटेल शोरूम इन पटियाला दिल्ली एंड फैक्ट्री इन लुधियाना। During FY 23-24, the company has manufactured 150,000 units of solar panels at its factory at Ludhiana, Punjab. The management decided to transfer half of its units manufactured to one of its retail showroom, Patiala, and second half to Delhi for sale therefrom. The factory and aforesaid retail showrooms are registered under GST in the states where they are located. Further, the company has obtained separate registrations under GST for Ludhiana factory and Patiala showroom. Management of the company understands that such transfers shall not be considered supply under GST as such transfers are made without consideration. Management पूरी तरह से गलत है, बिकॉज सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज सप्लाई। तो इसमें ये जो मैनेजमेंट का व्यू है वो इनकरेक्ट है, एंड सप्लाई माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा, ठीक है, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, इसी के सब क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, ल्यूमिनस लिमिटेड इज बेस्ड इन दिल्ली प्राइमरीली। During FY 23-24, the company receives legal services from attorney in Dubai in relation to registration of company's trademark in Dubai. Company paid 10,000 dirhams to the same attorney in Dubai. अच्छा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था ये तो स्टोरी थी, क्वेश्चन ये था Also determine the place of supply in case of services procured from attorney by Luminous Limited and suggest if the company is required to pay tax under reverse charge। ये क्वेश्चन था, नीचे जो हमने स्टोरी देखी वो स्टोरी थी, मतलब मैंने अपनी कंपनी को दुबई में रजिस्टर कराया और वहां किसी बंदे से सर्विस ली, 10,000 दिरहम पे किया। अच्छा ये मैंने क्या किया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन, बिजनेस हो या ना हो डीम्ड सप्लाई माना जाता है, तो सप्लाई है, बिल्कुल है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, सेक्शन 12 आप रेफर नहीं कर सकते, बिकॉज वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो आपको सेक्शन 13 रेफर करना पड़ेगा। यहां पे आ जाओ, प्लेस ऑफ सप्लाई दिखाता हूं यहाँ पे तो जस्ट अ सेकेंड ना, ये देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। अपन को सर्विस कहां से आई है, दुबई से, तो सेक्शन 13 रेफर करना पड़ेगा। अच्छा 13 में 13 सब सेक्शन 1 ये बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 डिटरमाइन करेगा, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि जनरल रूल, सेक्शन 13 से ले सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 से स्पेशल केसेस चालू होते हैं, और अपना जो केस है वो स्पेशल केसेस में फॉल नहीं करता, तो 13 सब सेक्शन 2 का जनरल रूल लगेगा जो ये बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, जो कि दिल्ली में, ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली। बात समझ में आई, यहाँ पे पढ़ लो, आपको अगर भी अभी भी यकीन नहीं हो तो। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट सर्विसेज नोटिफाइड इन सबसेक्शन 3 to 13, मतलब 3 to 13 स्पेसिफिक केसेस है, 13 सबसेक्शन 2 जनरल क्लॉज है, शैल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज जो हमारे केस में दिल्ली है, provided that location of recipient of services is not available in ordinary course of business, then location of supplier, place of supply will be Delhi। बात समझ में आई, RCM applicability है, बिल्कुल है। If a service is supplied by a person located in non-taxable territory to a person located in the taxable territory,
अदर देन एनटीओआर, एनटीओआर अदर देन एनटीओआर क्यों बोला? क्योंकि एनटीओआर को कौन सर्विस देता है? ओआईडीएआर, और ओआईडीएआर को तो झक मार के इधर एक बंदा बिठाना पड़ता है टैक्स का कंप्लायंस करने के लिए। ओआईडीएआर अगर आप पढ़ोगे तो द टैक्स इज पेएबल बाय द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज। तो 10,000 दिरहम पे भी टैक्स ल्यूमिनस लिमिटेड को पे करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था सर? भूल जाते हो? हाँ भाई भूल जाता हूँ। हाउ शुड ल्यूमिनस लिमिटेड रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर FY 23-24? ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अच्छा, कौन कौन सी ग्रांट मिली अपन को? ये 4, ठीक है। 30 लाख फॉर पास्ट रिसर्च एंड ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू सोलर सिस्टम, देयर इज नो कंडीशन अटैच्ड टू द ग्रांट। ऐसी ग्रांट को लॉटरी बोलते हैं कि मतलब मैंने पास्ट में कुछ किया था और उसकी मुझे अब ग्रांट मिल गई। लॉटरी, लॉटरी सीधा पीएनएल में क्रेडिट कर दो, पीएनएल इमीडिएटली, ठीक है। 5 लाख टुवर्ड्स परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ 15 लाख, यूजफुल लाइफ इज 5 years एंड डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन SLM बेसिस। इसमें आपके पास 2 अप्रोच है, ग्रॉस, नेट। ग्रॉस में क्या करोगे आप? 15 में से 5 हटा दोगे, 10 लाख बचेगा, डिवाइड बाई 5, 5 साल में आप 2-2 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। और नेट में आप क्या करोगे? आप 5 लाख की डेफर्ड इनकम बुक करोगे, 15 लाख का आप प्लांट एंड मशीनरी बुक करोगे, इसमें आप हर साल 3 का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, इसमें आप हर साल 1-1 लाख की इनकम बुक करोगे। तो भी नेट इंपैक्ट कितना आया? 2 लाख। यहाँ पे भी नेट इंपैक्ट कितना था? 2 लाख। सिंपल। 3 acres ऑफ लैंड टू सेट अप अ प्लांट, फेयर वैल्यू ऑफ लैंड इज 20। लैंड अपन को मुफ्त में मिल गई, नॉमिनल वैल्यू पे, 1 रुपए वगैरह पे, और फिर डिस्क्लोजर दे देना। गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 20 लाख टू डिफ्रे एक्सपेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एक्सपेक्टेड एनवायरमेंटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड इज 6 लाख पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 years। इसमें भी 2 अप्रोच है, 6 लाख का आप एक्सपेंस बुक करो, 4 लाख की आप इनकम बुक करो, 2 आपका नेट आएगा। या तो फिर एक्सपेंस ही 2 लाख का बुक करो, नेट इंपैक्ट सेम आएगा। 2 ऑप्शन है, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन थे आपको, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू जो फ्री में आया उसको नॉमिनल वैल्यू पे, और जो पास्ट रिसर्च के लिए वो सीधा पीएल, ठीक है। केस स्टडी नंबर 6 आपकी खत्म हो गई। यहाँ पे अच्छी थी, थोड़ी स्कैटर्ड सी थी, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो वी आर प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग। अब सिर्फ 2 केस स्टडीज बचती है, 7 एंड 8, फटाफट करके निपटा के खत्म करते हैं। यूट्यूब 1000 करवा दो यार, 1000 करवा दो, नहीं होता है ना। टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, लिंक वगैरह सब ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम की है, सब डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ठीक है। बाय बाय।